کے لوگوں کے بیچ میں رہتے رہتے ہمارے بچوں کا مستقبل تباہ و برباد ہو رہا ہے۔ ہم نے اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو صحابہ کی کہانی نہیں سنائی، ہم نے اپنے بچوں کو غوث اعظم کی کہانی نہیں بتائی، ہم نے اپنے بچوں کو خواجہ غریب نواز کے بچپن کی کہانی نہیں بتائی، ہم نے اپنے بال بچوں کو نہیں بتایا اس شرابی ماحول میں نہیں جانا، ان گندے بچوں کے ساتھ نہیں کھیلنا۔ جو بچے فری فائر کھیل رہے ہیں، جو بچے پب جی گیم کھیل رہے ہیں، جو بچے اسکول چھوڑ کر کے گندے بچوں کے ساتھ کھیل تماشا کر رہے ہیں، ان بچوں کے ساتھ کھیلنے کا مطلب کبھی شخصیت میں نکھار نہیں پیدا ہوگا، کبھی ایک مہان آدمی بن ہی نہیں سکتا ہے۔ چونکہ جس کے اندر سیکس کی بھوک جاگ گئی ہے وہ ہر وقت اسی طرح دنیا کی فاحشہ عورتوں کو ڈھونڈتا رہے گا جس سے کہ نفس کی تسکین ہو جائے۔ وہ ہر وقت کھانے پہ نظر رہے گی، ہر وقت اچھے کپڑے پہننے پہ نظر رہے گی، ہر وقت عورتوں کو تلاش کرنے پہ نظر رہے گی۔ یہ وہ گھٹیا قسم کے سماج کے لوگ ہیں جن کے ماں باپ نے اسے بڑے مقصد کے لیے تیار نہیں کیا کہ آپ کو سماج کا سدھارک بننا ہے، آپ کو سماج کا ایک زبردست لیڈر بننا ہے، آپ کو سماج کا ایک زبردست اچھا انجینئر بننا ہے، آپ کو سماج کا آئی ایس آفیسر بننا ہے، آپ کو سماج کا ایک زبردست جج اور بیرسٹر بننا ہے۔ تو جب پلان بہت بڑا ہوگا اس کے لیے محنت بھی بہت بڑی کرنی پڑے گی، پھر اس کے لیے ایک ایک منٹ قیمتی ہوگا۔ وہ چچیرے ممیرے پھپھیرے بھائی کی شادی میں مارے دوڑ کے نہیں جائے گا، وہ اسکول چھوڑ کے چچیرے بھائی کی شادی میں نہیں جائے گا، وہ اسکول کلاس چھوڑ کر کے ممیرے بھائی کی ممیری بہن کی شادی میں نہیں جائے گا، وہ اپنی پڑھائی چھوڑ کر کے اپنے پڑوس کے آدمی کی محفل میلاد میں تیجا کی محفل میں نہیں جائے گا، کیونکہ پلان اتنا بڑا ہے اس کے لیے زبردست محنت کی ضرورت ہے۔ وہ ایک ایک منٹ کو قیمتی سمجھ کر ساری انرجی کتابوں کے مطالعے پہ لگا دے گا، کیونکہ پلان اس کا بڑا ہے۔ اس کے ماں باپ نے اس کو کہا ہے آپ کو ڈی ایم بننا ہے، آپ کو 18 گھنٹے پڑھنا ہے، تو اس کے پاس فرصت کہاں ہے کہ وہ شرابی کے پاس رہے، ان کے پاس فرصت کیا کہ گندے بچوں کے ساتھ رہے۔ آج بچوں کے پاس قریب سے گزری، وہاں بہت بڑے لوگوں کی بات نہیں ہوتی ہے، بات صرف سیکس کی ہوتی ہے، بات صرف مشت زنی کی ہوتی ہے، بات صرف زناکاری کی ہوتی ہے، بات صرف پیار محبت کی ہوتی ہے۔ اس کا سمبند اس سے ہے، اس کا سمبند اس سے ہے۔ وہ 4 بچے کی ماں فلاں کے ساتھ بھاگ گئی، وہ 4 بچے کا باپ فلاں عورت سے چکر چلا رہا ہے، صرف گندی اور گھناؤنی بات ہے، سڑی ہوئی بات ہے۔ یہی باتیں عورتوں کی محفل میں، یہی باتیں نوجوانوں کی محفل میں، یہی باتیں نیتاؤں کی محفل میں، عام لوگ چونکہ سب کے سب سڑ چکے ہیں، سماج سڑ چکا ہے، اس لیے کبھی ان کی زبان پہ بزرگوں کا چرچا نہیں ہوگا، کبھی ان کی زبان پہ اچھے لوگوں کا چرچا نہیں ہوگا، کیونکہ ان کے بچوں کو اچھا بننا ہی نہیں ہے۔ ان کے بچوں کو بننا ہے پب جی کا گیمر، ان کے بچوں کو بننا ہے جوکر، ان کے بچوں کو بننا ہے کرکٹر، ان کے بچوں کو بننا ہے ڈانسر، ان کے بچوں کو بننا ہے صاحب سرکس کا جوکر، ان کے بچوں کو بننا ہے چپراسی، ان کے بچوں کو بننا ہے زمین بیچ کر کے گاڑی خرید کر، زمین بیچ کر پیٹرول ڈال کے بننے والا ہیروز کو بننا ہے۔ باپ کی زمین بیچ کر مکان بنانا، باپ کی زمین بیچ کر گاڑی خریدنی، باپ کی زمین کی فصل بیچ کر گاڑی کا پیٹرول ڈالنا ہے، یعنی باپ کی زمینیں بیچ کے شان دکھانا ہے۔ مکان شان دکھایا، اپنی کمائی سے گھر بناؤ تب سمجھیں شان ہے، اپنی کمائی سے فارچونر خریدو تب سمجھیں شان ہے۔ باپ کی زمین بیچ کے گاڑی خریدا، باپ کی فصل بیچ کے اس میں پیٹرول ڈالا، نہیں ملا تو کب شادی کر کے سسرال والے سے گاڑی خریدا، اس کی گاڑی میں پیٹرول کا پیسہ نہیں ہے، اس گاڑی کو خرید کے دوسروں سے بھیک مانگ کے پیٹرول ڈالا، اس کے لیے چھڑانی کر رہے گھوم رہے ہیں۔ یہ بچے وہ ہیں جن کو برباد اس کے ماں باپ نے کیا، بیجا پیار نے برباد کیا۔ ان ماں باپ نے اس بچوں کے سامنے کوئی بڑا پلان نہیں رکھا کہ آپ کو یہ پروجیکٹ دیا جا رہا، آپ کو یہ زندگی میں حاصل کرنے گول ہے، یہ مقصد ہے، یہ اچیومنٹ آپ کو حاصل کرنی ہے، یہ حصولیابیاں، یہ کامیابیاں کا آپ کو ڈی ایم بننا ہے، آپ کو بہت بڑا زبردست عالم بننا ہے، آپ کو زبردست حافظ، قاری، مفتی، ایک اسلامک اسکالر بننا ہے۔ کوئی مقصد نہیں ہے، صرف جان چھوڑانے کے لیے بچوں کو بھیج دیا گیا سیوان اور گوپال گنج، تاکہ وہاں کم سے کم بچہ پلتا رہے مدرسہ میں، وہ صاحب قرآن خوانی کرے اور وہاں سے پیسے ملے، کھائے پیے، کپڑا بھی فری میں مل جائے اور آنے جانے کا کرایہ بھی فری میں مل جائے، پھر ہمارا ایک بوجھ ہلکا ہو جائے۔ بچہ کیا پڑھ رہا ہے، کن لوگوں کی
सोहबत में रह रहा है, बहाने वाला टीचर कैसा है, जिस क्लास में पढ़ाता है उस क्लास के बच्चे कैसे हैं, जिस गांव में मदरसा है वहां उस गांव का कल्चर कैसा है, कभी इस गरीब बाप को से कोई मतलब नहीं है। पढ़ाने वाला टीचर बदअखलाक है, पढ़ाने वाला टीचर साथ बच्चों के साथ गलत सलूक करने वाला है, पढ़ाने वाला टीचर बेनमाजी है, पढ़ाने वाला टीचर जाहिल है, पढ़ाने वाला टीचर बदज़बान बदअखलाक बेहया है। हमारे बच्चे भी बदअखलाक बदज़बान बेहया नाकारा हो जाएंगे, उसको कोई मतलब है कि हमारा बच्चा बाहर में है, मेरी जान हल्की हो गई, मेरा बोझ हल्का हो गया, वो वहां आए जाए। अब वो 10 साल के बाद साफ टोपी और पगड़ी पहन के आएगा, जुब्बा पहन के मेरा बेटा पढ़ लिख गया। अब उनको कहा जाए इस मदरसे में तुमको नौकरी मिल रही है और तुमको यहाँ ऊंची ऊंची किताबें बुखारी शरीफ तक पढ़ानी है, तनख्वाह तुम्हारी 25,000 होगी, मगर वो बेटा क्या बोलेगा, नहीं मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, मैं तो ट्यूशन पढ़ाऊंगा या फिर मैं किसी मस्जिद में अजान दूंगा। अब ये 10 साल बर्बाद हो गए। ये ट्यूशन पढ़ाने वाला बनना था तो ये 10 साल बर्बाद क्यों किया? अगर पंचर ही ठीक करना था तो 10 साल मदरसे में क्यों बर्बाद किया? अगर मोबाइल का रिपेयरर बनना था तो 10 साल 15 साल मदरसे में क्यों बर्बाद किया? ये सिर्फ माँ बाप का कोई प्लान नहीं है, इसीलिए बच्चा बगैर पतवार के नाव की तरह कभी इधर कभी उधर कभी उधर कभी इधर पेंडुलम की तरह झूल रहा है। हर माँ बाप पे लाजिम है कि औलाद एक गिफ्ट है, औलाद अल्लाह का तोहफा है। अक्रिमू औलादकुम, आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अपनी औलाद की इज्जत कर। बेशुमार लाखों औरतें जो बांझ हैं, जिसको बेटी तक नहीं है वो बेटी के लिए तरस रही है। समाज की औरतें उनको बांझपन का ताना दे रही है, उसके बदन में आग लगती है जब कोई औरत उसको बांझ कहती है। जब समाज के कुछ लोग बांझ कहते हैं, जब बांझपन का ताना अच्छा नहीं लगता है। औलाद एक फूल है जो जिंदगी को हरा भरा रखता है। जब अल्लाह ने औलाद दे दिया है तो उस औलाद को क्यों दिया, उसकी इज्जत करने का हुक्म अल्लाह ने दिया। ऐसा नहीं कि बेटी की पैदाइश पे आप खुशियां मनाएं, लड्डू बांटें। बेटे की पैदाइश पे फोन से अपने 10 रिश्तेदार को बधाई दें, उनको खुशखबरी सुनाएं और रिश्तेदार बधाई आपको दे, मुबारक हो आपको बेटा पैदा हुआ। बेटा और बेटी में फर्क करने वाला अपनी औलाद का दुश्मन है। बेटा भी अल्लाह की नेमत है, बेटी भी अल्लाह की नेमत है, दोनों की अलग अलग ड्यूटीज है। अगर मर्द को औरत की जरूरत है तो औरत को मर्द की जरूरत है। मर्द औरत दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, या दोनों एक दूसरे के लिए बनाए गए हैं। आखिर जब दोनों को एक दूसरे की जरूरत है तो एक औरत के बाप से 10 लाख रुपए क्यों लिए गए? कौन सा काम के लिया गया? एक औरत के बाप से कार क्यों ली गई? क्या कह के लिया गया? जवाज का कौन सा रास्ता था? जब आप औरत के बगैर जिंदा नहीं रह सकते तो आपके पार्टनर बन के वो आ रही हैं, तो अपने पार्टनर के बाप से आपने 5 लाख रुपए क्यों लिए? पार्टनर के बाप से आपने गाड़ी क्यों खरीदी? पार्टनर के बाप से जमीन बेचवा के अपने घर का सारा सामान, अपना फर्नीचर आपने क्यों खरीदा? इसका मतलब आप उनको नौकरानी समझ रहे हैं। इसका मतलब है कि आप उनको खरीद के ला रहे हैं। इसका मतलब है कि औरतें बेचारा, बेसहारा, बेकस उसको आप समझ रहे हैं। अगर आप ये समझते कि उसके बगैर मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा, मुझको उनकी जरूरत है, उनको मेरी जरूरत है, तो जिस तरह आपसे लड़की वाला 10 लाख नहीं मांगा कि मैं आपको अपनी बेटी दूंगा, 10 लाख उनको देना होगा। जब उसने आपसे नहीं मांगा तो आपको किसने हक दे दिया कि आप बेटी वाले से 10 लाख का डिमांड आपने किया? इसका मतलब है कि औरतों को कहीं न कहीं आपने साइड किया, औरतों को कहीं न कहीं आपने जलील समझा, औरतों को कहीं न कहीं आपने उसको समाज से हाशिए पे लाके खड़ा कर दिया। कभी जिंदगी में सुकून नहीं मिलेगा। जिस औरत के बाप की जमीन बेचवा के टाइटन घड़ी और बुलेट आपने खरीदा है, कभी घर में सुकून नहीं मिलेगा, कभी उस औरत का दिल नहीं जीत पाएंगे। इसलिए समाज की धारणा को बदलना होगा कि हमारी औलाद की तरबियत किस तरह होगी। अगर बच्चों की तरबियत आपने कर दी कि तुम पैदा हुए हो इसलिए ताकि मेहर की रकम अपनी बीवी को दो, बीवी का कपड़ा तेरे जिम्मे है, बीवी की रोटी तेरे जिम्मे है, बीवी की परवरिश तेरे जिम्मे है, और औरत की ड्यूटी है कि वो घर को जन्नत नमा बनाए। औरत की ड्यूटी है वो शौहर की दिल को तस्कीन अता करे। औरत की ड्यूटी है अपनी गोद से सलाहुद्दीन
वकील को जन्म दे, औरत की ड्यूटी है अपनी गोद से मुजाहिद को जन्म दे, क्योंकि समाज जब नाकारों से भर जाएगा उस समाज को तबाही से कोई नहीं बचा पाएगा। इसलिए औरत की मर्द के मुकाबले में बड़ी ड्यूटी है कि उसको इस कदर सेफ रहना है, इस कदर उसको तालीम याफ्ता रहना है, इस कदर कि वह मर्दों की महफिल की जीनत न बने, वह 10 मर्दों की गोद में न झोले, वह 10 मर्दों को अपना चेहरा पेश न करे, वह 2-4 मर्दों से अपना हमल हॉस्पिटल में न गिरवाए, वो बाजार की जीनत न बने कि 10 गुंडा उनके चेहरे को देखकर अपनी आंख को सेके। वह बतालिक में एक जबरदस्त मुजाहिद की मां बनने वाली हो, मैं अपने शौहर को गुनाहों से बचाने वाली हो, मैं अपने घर को घर की तज़ीर और आराइश करने वाली हो। जब जिम्मेदारी आपकी ये है, ऐसा नहीं कि आप मर्द और दोनों आप बराबर है, कि एक अगर बराबर है तो एक साल मर्द बच्चा पैदा करेगा, आप बाहर काम कीजिए और दूसरे साल आप बच्चा पैदा कीजिए और मर्द बाहर जाके काम करेगा। जब ये नहीं हो सकता है कि मर्द बच्चा पैदा करे तो मर्द औरत दोनों अलग अलग है, दोनों की ड्यूटीज अलग अलग है। औरत की ड्यूटी ये नहीं है कि 10 मर्दों की गोद में झूले, 10 मर्दों की आंखों को सेके, महफिल में आके डांस करके 50 लोग मर्दों के जज्बात को भड़काए, 50 लोगों की जीनत बने। नहीं, उसकी जिम्मेदारी है वो अपने घर को जन्नत नुमा बनाए, अपने शौहर की इज्जत की हिफाजत करे और वह जानिक में मुजाहिद और बड़े बड़े मुस्लिम की मां बनने वाली हो। वो घर में रहे, उसका सारी जिम्मेदारी शौहर के ऊपर डाल दी गई है। महर की रकम शौहर देगा, कपड़ा शौहर देगा, खाना शौहर देगा, शौहर रेडी चलाए, रिक्शा चलाए, ठेला चलाए, मजदूरी करे, काश्तकारी करे, कुछ भी करे, मैं वो बाहर मजदूर बन के रहे मगर बीवी उसकी घर में रानी बन के रहेगी। इस्लाम ने औरतों को रानी बनाया था मगर ये दूसरे मर्दों की गोद का खिलौना बन गई। इसलिए बच्चे हमारे जोकर, हमारे लोफर, हमारे सड़क में पैदा हो रहे हैं। मर्द को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, औरतों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और दोनों को हुदूद में रहना होगा। जब ये दोनों हद में रहेंगे तो बच्चा रज़ी नहीं पैदा होगा, बच्चा गुलामी हसन पैदा होगा, बच्चा गुलामी हुसैन पैदा होगा, बच्चा गुलामी दस्तगीर पैदा होगा, बच्चा गुलामी ख्वाजा पैदा होगा। अगर माँ बाप दोनों अच्छे रहे तो फिर बच्चा जोकर नहीं, बच्चा गुलामी इमाम अहमद रजा पैदा होगा। शारे रिसालत मसलके आला हजरत इस्लाम का कानून, कानून मुस्तफा, खलीफाए ताजुश शरिया, बच्चा मर्द नहीं जन्म देता है, बच्चा को औरत जन्म देती है। मुझको मेरी माँ ने जन्म दिया है, आपको भी आपकी माँ ने जन्म दिया है, ख्वाजा गरीब नवाज को उनकी माँ ने जन्म दिया है, गौसे आजम को उनकी माँ ने जन्म दिया है, इमाम हसन और हुसैन को उनकी माँ ने जन्म दिया है। इसे बच्चा माँ जन्म देती है। माँ का सेफ रहना कितना जरूरी है, माँ की सेफ्टी कितनी जरूरी है, माँ का सेहतमंद रहना कितना जरूरी है, माँ का तालीम याफ्ता होना कितना जरूरी है। एक बच्चा अपने माँ के पेट में 9 महीने तक रहता है, एक बच्चा अपनी माँ का दूध 2 साल तक पीता है, एक बच्चा 10 साल तक माँ से अटैच रहता है। वो पेशाब पखाना करे माँ साफ करती है, उसको खाना माँ खिलाती है, तो बच्चा बाप से ज्यादा माँ से अटैच रहता है। इसलिए जिस पेट में 9 महीना बच्चा रहता हो उस पेट का अच्छा रहना कितना जरूरी है। जिस छाती का दूध बच्चा पीता है उस औरत का नेक रहना कितना जरूरी है। अगर दूध जला हुआ तो बच्चों का किरदार जल जाएगा। अगर माँ का शिकम अगर वो डैमेज हो तो बच्चा डैमेज, शख्सियत उसकी मजरू हो जाएगी, ऐसा बच्चा पैदा होगा। इसलिए औरतों का सेफ रहना मर्दों से ज्यादा जरूरी है, औरतों की तालीम याफ्ता होना मर्दों से ज्यादा जरूरी है। जब समझेंगे मुझको बच्चा पैदा करने के लिए शादी करना है, मुझको मुजाहिद देने के लिए शादी करना है, मुझको रिफॉर्मर देने के लिए शादी करना है, सिर्फ मजा लेने के लिए शादी जो करेगा वो तो सिर्फ चेहरे का रंग देखेगा, वो तो नाक को देखेगा, वो तो आंख को देखेगा, वो तो फिजिकल फिटनेस को देखेगा। चाहे उस अंदर से कैरेक्टर उसका डैमेज हो, चाहे अंदर से 10 क्लास से लेकर ग्रेजुएशन तक वो 10 लाखों के साथ उसके गंदे ताल्लुकात हो चुके हो, कोई बहस नहीं, मुंह चिकना होना चाहिए। किस कदर गंदी और आदत होगी समाज के लोगों की, सिर्फ मुंह को देखता है,
कैरेक्टर नहीं देखता, उसकी माँ कैसी है, उसके बाप कैसे हैं, ये लड़की कैसी है, इसका बैकग्राउंड कैसा है, ये कुरान पढ़ती है कि नहीं, ये नमाज पढ़ती है कि नहीं, इसके घिनौने संबंध फेसबुक यूट्यूब चला कर इंस्टाग्राम पे रखने वाली तो नहीं है, या डांस करने वाली तो नहीं है। इसलिए कि हम शादी सिर्फ 2-4 मिनट की तस्कीन की खातिर नहीं करते हैं। अगर यही बात है तो बेशुमार घराने में जहाँ बच्चा पैदा नहीं होता है, क्यों मारे मारे अजमेर फिरते हैं, क्यों मारे मारे पंडवा शरीफ जाते हैं, क्यों मारे मारे डॉक्टर के पास दौड़ते हैं, क्यों झलाई करवाते हैं, क्यों अपना टेस्ट करवाते हैं, क्यों करवाते हैं, किस हम में कमी है कि उसमें कमी है कि चलो अजमेर जाओ, चलो डॉक्टर के पास जाओ, चलो पापा के पास जाओ। इसका मतलब है कि शादी सिर्फ शख्स के लिए नहीं की जाती है, शादी 2-4 मिनट की मस्ती के लिए नहीं की जाती है। शादी के बाद मुझको औलाद चाहिए जो हमारी निशानी हो, शादी के बाद औलाद चाहिए जो मेरी दौलत का रखवाला हो, शादी के बाद औलाद चाहिए ताकि मेरी नस्लें चलती रहे उस बेटे से। जब औलाद चाहिए तो फिर औलाद सड़ी हुई कैसे चाहिए, औलाद सड़ी हुई कैंसर ज़्यादा पैदा हो, आप चाहेंगे? नहीं चाहेंगे। आप चाहेंगे मेरा बेटा या मेरी बेटी सेहतमंद हो, आप चाहेंगे मेरे बच्चे बिल्कुल बाअखलाक बने, तो बाअखलाक कैसे बनेंगे? जमीन सड़ी हुई हो, फसल अच्छी कैसे पैदा हो जाएगी? इसलिए दुनिया के लोग बाल बच्चों के कैरेक्टर पे जोर बाद में देते हैं, मगर एक तुर्रे इम्तियाज है इस्लाम का कि पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम ने सबसे ज्यादा औरतों के सिलेक्शन पे जोर दिया है, सबसे ज्यादा औरतों के सिलेक्शन पे जोर दिया है कि कैसी औरत तेरे घर आए ताकि तेरी आने वाली नस्लें उसके कैरेक्टर पर डिपेंड कर रही है, कैसी आए। हुजूर ने क्या कहा? तुनकाहुल मरअतु लिअरबा, औरतों से 4 चीजों को देख के निकाह किया जाता है, लिमालिहा वले जमालिहा वले हसबिहा वले दीनिहा। हुजूर ने क्या फरमाया? 4 चीजों को शादी में देखा जाता है। जनरली आमतौर पर लोग देखते हैं, लड़की का हुस्न देखते हैं, लड़की का माल देखते हैं, लड़की का खानदान देखते हैं और लड़की का दीन और अखलाक देखते हैं। तो हुजूर ने अपने गुलामों से कहा, मेरे गुलामों तुम सिर्फ हुस्न मत देखना, ला तज़व्वजुहुन्ना ले हुस्निहिन्ना, इसको दीवारों में लिख के रखें। आजकल हमारे जोकर और लोफर और सड़े हुए बच्चे जिसको अच्छी सोहबत नहीं मिली, जिनको मदरसा में मुस्तकबिल नजर नहीं आया, जिसके पास काफिरों, फासिकों, फाजिरों, शराबियों, काफिरों, मुशरिकों का चेहरा जो हमेशा देखता रहा, ये भी चाहता है कि हमारी बीवी हुस्न और जमाल की देवी रहे। अब सबका, जहां तक के समाज का तलवा, वो भी चाहता है कि मेरी बीवी करीना जैसी गोरी रहे, करीना जैसी खूबसूरत स्मार्ट गर्ल रहे। ये अपना आज चेहरा आईने में नहीं देखता है कि मैं कैसा हूं, अपनी बीवी के लिए वो तमन्ना मांगता है कि वो बिल्कुल हेमा मालिनी जैसी खूबसूरत मेरी बीवी हो। उसको कलवे से कहा जाए कि आईना देख लिया कर। अगर तू चाहता है कि हेमा जैसी खूबसूरत बीवी मेरी हो, तो तेरी बीवी भी तो चाहती है कि मेरा शौहर साफ खूबसूरत और स्मार्ट हो, मेरा शौहर बिल्कुल व्हाइट गोरा हो, मेरा शौहर 5.5 फीट का लंबा हो, मेरा शौहर हेल्दी हष्ट पुष्ट हो। फिर तू क्या करेगा बताओ, कहां छुपेगा? और फिर तुझको कौन अपनी बेटी देगा? इसलिए हुजूर ने क्या कहा? सिर्फ हुस्न देख के शादी मत कर, सिर्फ माल देख के शादी मत कर। मुस्तफा कहते हैं दीन और अखलाक देख के शादी किया कर। ऐ मेरे गुलामों, दीन देख के शादी कर, अखलाक देख के शादी कर, दीन देख के शादी कर। अगर दीन देखेगा, आका फरमाते हैं कि एक दीनदार काली कलोटी औरत वाला अमतुन सौदा ज़ातुद्दीनिन अफसल, सरकार ने साफ तौर पर नाम लेके कहा कि काली कलोटी दीनदार औरत तेरे हक में बेहतर है, तेरे हक में बेहतर है। क्या मतलब? ऐसा नहीं कि काली कलोटी को ढूंढा कर। हुजूर ने एक बात बताई, दीनदार औरत भले ही काली हो लेकिन तेरे लिए बेहतर है। दीनदार औरत, दीन तलाश करना, चूंकि तुझको औलाद चाहिए, औलाद नाफरमान लतम जुतम करने वाली नहीं, फरमा बरदार चाहिए। औलाद माँ बाप को भूसा मुक्ति करने वाली नहीं, फरमा बरदार चाहिए। औलाद आंखों की ठंडक चाहिए। तो जिस जमीन से वो औलाद की फसल पैदा होगी, उस जमीन को दीनदार होना जरूरी है।
उस जमीन का परहेजगार होना, उस जमीन का फर्टाइल जरखेज होना जरूरी है। मैंने तमहीद बांधी, चूंकि समाज में तमन्ना हमारी कुछ होती है, अब प्रैक्टिकल हमारा कुछ होता है। नेक बनने के लिए नेकों का चर्चा करना, सुनना, उनका जिक्र करना जरूरी है। एक कामयाब लीडर बनने के लिए रोजाना कामयाब लीडरों की कहानी सुननी पड़ती है। उसी तरह एक अच्छा कामयाब इंसान बनने के लिए कामयाब नेक लोगों की जिंदगी जरूरी है। आज आपको मैं बताता हूं, जिसके नाम से जलसा है गौसे आजम कॉन्फ्रेंस। हम लोग कहानी तो बार बार सुनते हैं, करामतें तो बार बार सुनते हैं, लेकिन जिस गौसे आजम के आज 800 साल गुजर जाने के बाद जिनके नाम की कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिनके नाम से इदारे कायम हो रहे हैं, जिनके नाम से बच्चों का नाम रखा जा रहा है, अब्दुल कादिर नाम है गौसे आजम का, इसलिए हम लोग कादरी कहलाते हैं। अब्दुल कादिर से कादरी कहलाते हैं, यानी हम अब्दुल कादिर वाले हैं। हम गौसे आजम को अपना शेखे तरीकत मानते हैं। हम गौसे आजम के मुरीद, उनके अकीदतमंद हैं। गौसे आजम से सिलसिले में हम दाखिल हैं, इसलिए हम लोग कादरी कहलाते हैं। हम लोग कादरी हैं। तो एक अब्दुल कादिर, आज करोड़ों कादरी अपने नाम के साथ लफ्ज़ कादरी लगा रहे हैं। आखिर क्या है गौसे आजम में? इस कदर अजमत, इस कदर बुलंदी कैसे मिली उसे, जो जिलान में पैदा हुए, बगदाद में इल्म हासिल किया, कई साल तक इल्म हासिल करते रहे, मुफ्ती, हाफिज, कारी, आलिम सब बनने के बाद जंगल की तरफ चले गए। 25 साल तक वहां दरख्त के पत्तों को खाया, गिरी पड़ी सब्जियां जंगल की खाते रहे जब भूख लगती, ताकि पीठ सीधी रहे और हमेशा महवे इबादत रहते, खुदा की मार्फत का नूर हासिल करते। कब? आलिम, हाफिज, कारी, मुफ्ती सब बनने के बाद। इस सब ट्रेनिंग के लिए आपने 25 साल तक जंगलों में, किसरा के खंडरात में आपने जिंदगी के दिन गुजारे, जो कि किताबों में पढ़ा जाता है और तन्हाइयों में, जंगलों में उस पर प्रैक्टिकली अमल किया जाता है। पहले जमाने में ट्रेनिंग, आजकल स्कूल में ट्रेनिंग होती है। आप डीएम बनने वाले, आईएएस कॉम्पिटिशन आपने निकाल लिया, फिर भी 6 महीने की ट्रेनिंग होती है आपकी, ताकि उन्होंने बहुत पढ़ा, पूरे हिंदुस्तान में टॉप कर लिया, सबसे महंगा और सबसे ज्यादा भारी कंपटीशन पास किया, फिर भी 6 महीने की ट्रेनिंग होती है, ताकि अब आपको डीएम बनना है। डीएम बनने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा है। पब्लिक के बीच आपको रहना है, कैसे उनकी तरफ से पहुंचने वाली तकलीफ को सहना है, कैसे अपना सीना बड़ा रखना है, कैसे आप गाली पब्लिक की सुनेंगे, कैसे आप उनको संभालेंगे, कैसे हर मोर्चे पे पूरे डिस्ट्रिक्ट का मालिक बनकर कैसे उसको संभालेंगे, सब ये ट्रेनिंग होती है। अगरचे बहुत पढ़े लिखे हैं, वो 18 घंटे पढ़ते थे, सारी किताबों को चट कर गया, एग्जाम में 90% नंबर लाया, उसका पोजीशन 10 टॉप है, फिर भी ट्रेनिंग उसकी होती है कि अब आपको ये ओहदा दिया जा रहा है, उस ओहदे में आपको ऐसे करना है, ये नहीं करना है। डीएम की ट्रेनिंग है, मास्टर की ट्रेनिंग है, साहब लॉयर की ट्रेनिंग है, सबकी ट्रेनिंग है, मगर हमारी कोई ट्रेनिंग नहीं है। यहाँ से दस्तार बांधे फट से मदरसे में आता है, मैं पढ़ाने लगे, यहाँ दस्तार लपेटे फौरन मस्जिद में चले गए, यहाँ दस्तार लपेटे फौरन अजान देने लगे। अब वहां कोई आके गाली दिया, बस पगड़ी पटक के मस्जिद छोड़ के भाग गए। क्यों भाग गए? हमारे अल्लाह का मुल्क बहुत बड़ा है, जगह मिल जाएगी, मैं तुम्हारी गाली नहीं सुनूंगा, मैं 20 साल तक पढ़ा लिखा हूं, मैं नहीं गाली सुनूंगा, मैं तेरी बात नहीं सुनूंगा, जमीन बहुत मिलेगी, बहुत जगह मिलेगी, भाग गए। अगर नायके पैगंबर आप बने हैं तो कम से कम अपने पैगंबर की जिंदगी का मुताला कर लीजिए कि आपके पैगंबर से बड़ा कौन है दुनिया में। बाद अज़ खुदा बुजुर्ग तुई, किस्सा मुख्तसर, अल्लाह के बाद सबसे बड़े मुस्तफा की जात है और सबसे ज्यादा अज़ियत, तकलीफ दीन की राहों में मुस्तफा को ही दी गई है। सबसे ज्यादा आका फरमाते हैं उसी तो फी सबीली हाज़ा, इस दीन की राहों में मैं जितनी तकलीफ दिया गया हूं, मेरे से पहले उतनी तकलीफ किसी को नहीं हुई, न मेरे बाद किसी को तकलीफ होगी। कौनैन का पैगंबर मालिक को मुख्तार है, गले में चादर डाल के लोग खींच रहे हैं, कौनैन के मालिक को मुख्तार है, लोग आप पर पत्थरों की बारिश कर रहे हैं, आप कौनैन के मालिक को मुख्तार है। अपने ही पैदाइशी वतन मक्का में 3 साल तक अबू तालिब की घाटी में आपको वहां के सारे कबीले वालों ने मिल करके कबीले बनु हाशिम का बाइकाट कर दिया, यानी अब अपने खानदान वालों के साथ महसूर हो गए, कैदी बन गए एक घाटी में। कहा? दूसरे मुल्क में नहीं, अपने मुल्क में, अपने शहर मक्का में जहां आप पैदा हुए थे। जितनी तकलीफें आपको दी गई उतनी तकलीफ किसी को पहले दी गई
نہ قیامت تک دی جائے گی۔ اگر نائب پیغمبر کہلاتے ہیں تو سینہ اتنا ہی چوڑا رکھنا ہوگا کہ ہمیں جب دین کا کام کرنا ہے، لوگوں کی اصلاح کرنی ہے، لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، تو جو سامنے قوم ہے اس کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف کو سہنے کا سینہ بھی رکھنا ہوگا، چوڑا رکھنا ہوگا۔ جب کونین کے مالک پھونکے تو چاند زمین پہ آ جائے، اشارہ کریں تو سورج ڈوبا ہوا پلٹ آئے، اتنا مالک و مختار مصطفیٰ اذیتیں سہ رہے ہیں۔ لوگ گالی دے رہے ہیں، لوگ کانٹے بچھا رہے ہیں، لوگ مارنا چاہتے ہیں، پتھروں سے لہو لہان کر رہے ہیں۔ کبھی حضور نے پنچایتی نہیں کی، بلکہ آقا علیہ السلام نے ہمیشہ اپنا پیغام پہنچاتے رہے۔ اس قدر صبر کا مظاہرہ کیا، اس قدر آپ نے لگن شیلتا کے ساتھ دین کا پیغام عام کیا۔ ان کی طرف سے پہنچنے والے حملوں کا کوئی جواب نہیں، صرف کام اتنا کیا کہ سارا عرب آپ کا غلام بن گیا، سارا عرب آپ کا غلام بن گیا۔ جس نے کانٹے بچھائے تھے وہ کلمہ پڑھ کے مومن ہو گئے، جس نے آپ پر پتھر پھینکا تھا وہ سارا عرب آپ کا غلام ہو گیا۔ جس مکہ میں رہنا مشکل تھا چھوڑ کے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، مدینے سے واپس کیسے مکہ آئے فاتحانہ شان کے ساتھ، اور پورا مکہ نہیں پورا عرب، یعنی جو کئی ہزار کلومیٹر دور کا بھوبھاگ کا ایریا ہے، تمام عرب مصطفیٰ کا غلام بن گیا۔ اور آج بھی عرب میں جتنے ممالک ہیں سب کے سب مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والے، بھلے ہی عقیدے کے اعتبار سے آگے چل کے عقیدہ لوگوں کا خراب ہوا، اس میں سے بہت سارے لوگوں نے گندے عقیدے کی وجہ سے اسلام کا دامن اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیا، الگ بات ہے، لیکن شرک نہیں، وہاں پہ اب توحید ہے، ایک اللہ کا ماننے والا۔ بت پرستی سے وہ سارا عرب پاک ہو گیا۔ وہ لوگ جو مصطفیٰ کے دشمن تھے اب وہ صحابی کہلانے لگے، اب وہ اسلام کے خادم کہلانے لگے، اب وہ اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے عرب سے باہر نکل کے ایران آ گئے، عرب سے باہر نکل کر روم چلے گئے، پوری دنیا کو ہلا کے رکھ ڈالا، یہاں تک کہ ہندوستان محمد ابن قاسم آ گئے۔ 1000 سال تک مسلمانوں کے ہاتھ، اس ملک عزیز کی حکومت ان کے ہاتھ میں رہی، یعنی ایک کلمہ پڑھنے والا نہیں تھا، لیکن یہاں مسلمانوں کا شاسن قائم ہو گیا۔ ایران میں سارے مجوسی تھے مگر سارا ایران کلمہ پڑھ کے مومن ہو گیا۔ روم کرسچنوں کے قبضے میں تھا لیکن مٹھی پر مصطفیٰ کے غلام عرب کے وہ وہاں قدم رکھا، سارا روم اللہ نے ان کو عطا فرما دیا۔ کیا مطلب؟ جو مشن لے کے چلتا ہے، جن کے دماغ میں بڑا پلان ہوتا ہے، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں نہیں الجھتا ہے، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں نہیں جھگڑتا ہے، وہ رنگ اور خاندان میں نہیں الجھتا ہے، وہ صاحب اپنے باپ دادوں کے نام پہ نہیں لڑتا ہے، اس کا پلان بڑا ہے۔ ہمیں زمین جیتنی ہے، ہمیں اسلام کی تبلیغ کرنی ہے، ہمیں کفار و مشرکین کو مصطفیٰ کا غلام بنانا ہے۔ جب بڑا بڑا پلان لے کے نکلے، چھوٹی چھوٹی باتیں تو ہمیشہ ہوتی رہتی ہیں، کبھی کھانے کے نام پہ، کبھی رشتہ داری کے نام پہ، کبھی پڑوس میں گھر بنانے کے نام پہ، کبھی کھیتی باڑی کے نام پہ، کبھی بزنس کے نام پہ، یہ تو ہمیشہ رہے گا، یہ باتیں ہمیشہ رہیں گی۔ مگر وہ لوگ اگر الجھ گئے ہوتے چھوٹی چھوٹی باتوں میں، روم نہیں ملتا، ایران نہیں ملتا، ہندوستان نہیں ملتا۔ وہ لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں سے اوپر اٹھ کر صرف اسلام اور مصطفیٰ کا پیغام کو عام کرنے کے نکلے تو اللہ نے ساری دنیا ان کے حوالے کر دیا۔